We are going to start with Polish notations. We have three basic types of Polish notations. One is prefix, the other one is postfix, and then we are having infix notations. So before going into the details, what actually infix notation is? Infix notation क्या होती है बच्चे? Let's see. When we are talking about infix notation, इनफिक्स नोटेशन वो नोटेशन होती है जब भी किसी भी एक्सप्रेशन में ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेटर होता है, दैट इज कंसीडर्ड टू एज इनफिक्स नोटेशन. ऑपरेंड कौन से हैं इसमें? ए एंड बी, दे आर योर ऑपरेंड्स, एंड ऑपरेटर इज व्हाट? प्लस, मल्टीप्लाई, they will be considered as operators. So we are having operators plus and multiply in these expressions, and we have operands a and b. So this will be considered as infix notation because we are having operator in between the operands. So this will be considered as your infix notation. When we are talking about prefix notation, what is prefix notation? Prefix means, pre means something before. So here prefix means when we are having operators which are placed before the operands. So we are having operands A and B, और operands के पहले operator होगा, उस expression को हम prefix expression बोलते हैं. So अगर हमारे पास कोई भी expression इस तरह से बनता है जिसमें कुछ ऑपरेटर्स हैं और कुछ ऑपरेंड्स हैं और ऑपरेंड से पहले ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, सो इसको हम प्रीफिक्स नोटेशन बोलते हैं. Apart from this, we have another kind of notation, that is your postfix notation. So as the name suggests, it is postfix. That means the operator will be placed after the operands. So in any way, when we are placing operands and afterwards we are placing the operator, then it will be considered as your postfix notation. So pre means when we are having operators before the operand. In means when we are having operator within the operands, and post means when we are having operators after the operands. So if anyone wants to ask anything here, only please ask. So moving ahead, we are going to discuss few of the basics of expressions which will be help us to for solving the notations. So प्रेसिडेंस सबको पता है, हर एक्सप्रेशन की, हर ऑपरेटर की अपनी एक प्रेसिडेंस होती है. सो प्रेसिडेंस बेसिकली मीन्स द प्रायोरिटी. हम किस सिंबल को क्या प्रायोरिटी देते हैं. सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी मिलती है वो पेनेंसिस को मिलती है. अगर कोई भी एक्सप्रेशन है लेट्स से जिसमें पेनेंसिस हैं, तो सबसे पहले हम पेनेंसिस को सॉल्व करेंगे. लेट्स टेक दिस एग्जांपल. हमारे पास एक्सप्रेशन है पेनेंसिस में 2 + 3 देन मल्टीप्लाई बाय 5. सो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पेनेंसिस. दैट मीन्स वी विल कंप्यूट 3 + 2, दैट मीन्स इट विल कम्स टू 5.
then we will multiply this 5 with the 5 to get the answer. अगर हमारे पास ये penances नहीं होते, एक्सप्रेशन अगर इस तरह से होता, देन हाउ वी विल बी सॉल्विंग इट. फिर हम प्रेसिडेंस लगाते हैं ऑपरेटर्स की. हर ऑपरेटर की अपनी प्रायोरिटी होती है, अपनी प्रेसिडेंस होती है. सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन का साइन को प्रायोरिटाइज करते हैं, आफ्टरवर्ड वी विल सॉल्व द एडिशन. सो इस सिनेरियो में क्या होना था, सबसे पहले हमने सॉल्व करना था मल्टीप्लाई को. देन इट विल गोज टू 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15. 15 plus 2 is 17. So the answer will comes to 17. पर अगर हम पेनेंसिस पहले सॉल्व करते, then the answer comes to be 25, right? So this is how penances can affect your ultimate results, the answers. So एक्सप्रेशन में जब भी आपको पेनेंसिस मिलेंगी, ब्रैकेट्स मिलेंगी, आप सबसे पहले पेनेंसिस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप बाकी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे. और अगर हम प्रेसिडेंस की बात करें तो आपको याद होगा हम बोर्ड मास अप्लाई करते थे. सो उसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, देन डिवाइड, multiply, addition and subtraction. So this is how it goes, the sequencing. So जो भी हम एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे स्टैट्स की हेल्प से, हम उसमें प्रेसिडेंस एंड पेनेंसिस की को वैल्यू देंगे, उनका ध्यान रखेंगे. सो नेक्स्ट इज प्रीफिक्स नोटेशन. अब प्रीफिक्स नोटेशन है, उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. सपोज प्रीफिक्स इज व्हाट? प्रीफिक्स इज when you are having the operators before the operand. So this is your prefix notation which is given. इसमें सबसे पहले आप बैक ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, उसके बाद रेस्ट. दैट मीन्स अगर हम इस एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करते हैं, इट विल बी कंप्यूटेड एज 3 मल्टीप्लाई बाय 5. सो इसका इन एक्सप्रेशन यही बनेगा. इसके बाद इसका रिजल्ट आएगा 15. सो 15 जो रिजल्ट आया है उसको हम कंप्यूट करेंगे विथ the remaining expression. That means we will perform 2 plus 15. So it will give us the answer as 17. This is how the result will be computed. This is simple calculation. Likewise, we have another expression, this. Under this, we will firstly compute this 3 plus 5. Then afterwards, the result will be multiplied by 2. We will multiply 2 with the result. So it will give you the answer as 25. Next we have postfix notation. Suppose we are having a notation given as this, then how this expression will be concluded. So we will firstly perform multiplication. So we will solve this expression first. We will perform 3 multiply by 5 and then the result will be 15, which will be edited in 2. So this is how we can compute
The result is 17. As a conclusion, we can say that infix is the only notation that requires parentheses in order to change the order in which the operations are done. Otherwise, prefix and postfix can be solved and do not require parentheses. Next, we are having fully parenthesized expression. So what is fully parenthesized expression? When each and every operation lies in parentheses. So you can check over here. We have operation A plus B, which is in parentheses. Then we have operation this parenthesis multiply by C, and then the whole expression we are having. So this will be considered as your fully parenthesized expression. So moving ahead, infix to prefix conversion. जब भी हमें इनफिक्स से प्रीफिक्स कन्वर्जन करनी है तो हमें क्या करना है? बेसिकली हमें ऑपरेटर्स जो हैं गिवन उनके आगे जो भी ऑपरेंट्स गिवन है उनके आगे ऑपरेटर को लेके आना है. सो अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें, ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है, ऑपरेंट्स के बीच में ऑपरेटर आ रहा है. अब मुझे इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है. इसका मतलब क्या है कि मुझे प्लस साइन को आगे लेके आना है ए और बी के. देन इट विल बी कन्वर्टेड टू प्रीफिक्स ऑपरेटर. सिमिलरली मुझे इसके साथ भी ऐसे करना है और दोनों जो सब एक्सप्रेशंस हैं उनके साथ भी ऐसे ही करना है. सो मूविंग अहेड, इस तरह से ये मेरा सिंबल जो है ए और बी के आगे आ गया है. देन आफ्टरवर्ड्स सी और डी का सिंबल जो है प्लस का वो भी मैं आगे लेके आऊंगी. और आप ये ध्यान से देख सकते हैं कि जो इन दोनों सब एक्सप्रेशंस का सिंबल था जो मल्टीप्लाई का था वो भी आगे आ चुका है. ठीक है जी. सो इस तरह से ये आपका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन बन जाएगा. जो फाइनल आपका रिजल्ट है, जो फाइनल प्रीफिक्स नोटेशन है आपकी, वो ये है. सो वी हैव सब एक्सप्रेशन both, we have both the sub expressions and then we have the prefix of main expression. ठीक है जी. सो इनफिक्स हमारा था a प्लस b मल्टीप्लाई बाय c प्लस d. सो इसका प्रीफिक्स क्या बना हमारे पास? मल्टीप्लाई a multiply plus ab plus cd. So this was the prefix of given infix. And you have to carefully see that the order should not be changed. Then moving ahead, ये हमारे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है. अब हम इसका पोस्ट फिक्स बनाएंगे. पोस्ट फिक्स कैसे होगा? पोस्ट मीन्स हमें ऑपरेंड्स के बाद में ऑपरेटर को लेके जाना है. सो इसमें हम क्या करेंगे? अगर लेट से हमारा ये सब एक्सप्रेशन है, इसका पोस्ट फिक्स क्या होगा? इनफिक्स है a प्लस बी, इसका पोस्ट फिक्स क्या होगा? ए बी
प्लस, ठीक है जी। अब हमारा ये एक सब एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन है, इन दोनों में ये ऑपरेटर है, दैट मीन्स मैं इसको भी पीछे लेके जाऊंगी। सो इसका क्या बनेगा, ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई, ठीक है जी। सो यहाँ तक हमारा बन गया। सिमिलरली ये मेरा एक सब एक्सप्रेशन है और ये एक सब एक्सप्रेशन है। सो इसी तरह से सेकेंड सब एक्सप्रेशन का भी मैं पोस्ट फिक्स बना लूंगी, जो कि क्या बनेगा, डी ई प्लस एफ डिवाइड। अब इस सब एक्सप्रेशन को और इस सब एक्सप्रेशन को मैं कन्वर्ट करूंगी पोस्ट फिक्स में, जो कि मेरा ये रिजल्ट बनेगा। इन दोनों में माइनस साइन है, इन दोनों का माइनस साइन मैं पीछे ले जाऊंगी और ये दोनों एक्ट करेंगे एज ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स, ठीक है जी। सो द फाइनल रिजल्ट विल कम्स टू ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी ई प्लस एफ डिवाइडेड देन माइनस। If anyone wants to ask anything, you can. Otherwise, we are going to wind up the session for today, and in tomorrow's session, we'll be discussing the algorithms to convert prefix and postfix notations.